Yeah, yeah. Yeah. Okay. Yes. Right, right. Okay. Okay, we have a question here. Was it the father? Okay, is everyone ready? Okay, you can settle down. We're going to start. बैठ जाएं कृपया अपने अपने जगह पर, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। Okay. Okay, so we have a question here. Was it the father speaking through Elizabeth? She spoke in a loud voice, "Blessed art thou among women," when Mary gave her greetings to Elizabeth, who was full of the Holy Spirit. Okay, so when we look at, okay, I'll just answer this. एक सवाल आया है। Okay, um, okay, let's just go to the scripture, Luke chapter 1. Yeah, Luke chapter 1. लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, And this is verses 39 to 42. Okay, it's a very simple लूका रचित truth which is mentioned सुसमाचार here. एक का Okay, probably 39 to 42। you can just explain the question. So who spoke? Is the Trinity mentioned here? Yeah, this question is okay. In Luke chapter 1, in this verse, we see that Elizabeth actually prophesies, right, to यहाँ Mary. पर एक सवाल थॉमस भाई के पास से आया है कि जब एलिजाबेथ जब मरियम के साथ मिलती है तो वो बोलते हैं स्त्रियों में तू धन्य है करके बोलते हैं, जो पवित्र आत्मा के, तुम जो पवित्र आत्मा से पूर्ण हो। क्या यहाँ पर पवित्र तृत्वत्व के बारे में बताया गया है कि नहीं, वो सवाल आया। Yeah. Okay. So Brother Thomas. So when we see these verses, it's very clear. It says that Elizabeth was filled with the Holy Spirit. That is verse 41. 41 में कहा गया है कि एलिजाबेथ जो थी वो पवित्र आत्मा से भर गई थी। Okay. And it says in verse 42 that then she spoke with a loud voice and said, whatever we see those verses there. और उसके बाद लिखा हुआ है 42 में कि उसने उसके बाद ऊंची आवाज में कहा कि तू स्त्रियों में धन्य है। So what we understand is that she spoke as led by the Holy Spirit. और यहाँ पर देखते हैं लूका रचित सुसमाचार में कि वो पवित्र आत्मा से होकर बातचीत किया उसने। And she spoke as this information was revealed to her by the Holy Spirit. और जिस प्रकार से ये पवित्र आत्मा के द्वारा बताया गया हुआ एक विषय के बारे में वो बताती है। Right. So, well, we don't see the mention of the Father and the Son here. यहाँ पर लेकिन पिता परमेश्वर और पुत्र के विषय में नहीं दर्शाया गया है। There is an indirect reference to the Son. और यहाँ पर जो है सीधा तरीके से नहीं, लेकिन पुत्र के विषय में कहा भी गया है। Where Elizabeth says, why is it granted that the mother of my Lord should come and visit me? और वो जहाँ पे एलिजाबेथ बोलती है, मैं धन्य हूँ कि मेरे प्रभु की माता मेरे से आके मिले। So it's an indirect reference to the Lord. सीधे यहाँ पर एक रेफरेंस नहीं दिया जा रहा, लेकिन एक तरीके से वो देखा जा सकता है कि पुत्र के विषय में बोला गया है। But if we read through the whole passage, yeah, we see reference of the Father, we see reference of the Son. और अगर पूरा अध्याय हम पढ़ने की कोशिश करें, उसमें पिता के विषय में, पुत्र के विषय में और पवित्र आत्मा के विषय में लिखा हुआ है। Yeah. So, but just that verse it alone does not mention that. लेकिन ये वचन, एक वचन जो है तीनों के बारे में नहीं बताता है। Right. I hope that helps. Okay. Right. Okay. Any other questions? Okay. There was one clarification here that when I said the Holy Spirit, we think of the Holy Spirit as electricity. और जब मैंने बोला था कि पवित्र आत्मा जो है एक इलेक्ट्रिसिटी के समान है, no, we think like that. हम वैसा सोचते हैं।
but actually the Holy Spirit is a person. लेकिन पवित्र आत्मा जो है एक व्यक्तित्व है. Many times we think of the Holy Spirit in terms of the anointing of the Holy Spirit or the power that we experience because of the Holy Spirit. और कई बार हम लोग ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा के से अभिषेक पाना, पवित्र आत्मा में भर जाना. Right? And we tend to think of the Holy Spirit as an inanimate object or something which does not have life. लेकिन कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, ये ऐसा सोचते हैं कि पवित्र आत्मा जो है एक व्यक्तित्व नहीं है, एक जीवन के बिना एक शक्ति सिर्फ है. Right. Shakti is the right term. Right? So without life, we tend to think of the Holy Spirit like that. और कभी कभी हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि वो सिर्फ एक शक्ति है. Right? But the Holy Spirit is more than that. लेकिन पवित्र आत्मा जो है एक शक्ति से ऊपर है. Right? He is all powerful. वो सर्वशक्तिशाली है. And he is a person. और वो एक व्यक्तित्व है. Right? Which means someone whom you can see. You can't talk to electricity. क्यों, अगर आप ऐसा सोचें तो इलेक्ट्रिसिटी को देखकर आप उसके साथ बातचीत नहीं कर सकते. Right? Because it's just power. क्योंकि उसके पास सिर्फ एक शक्ति है. But the Holy Spirit, God, the Holy Spirit is a person, which means you can speak to him. लेकिन पवित्र आत्मा जो है एक व्यक्ति है, इसलिए आप उसके साथ बातचीत कर सकते हैं. Right? So that's the difference. Okay, he has a. Okay. Okay. So the question is, okay, what do you feel when the Holy Spirit comes upon you? Okay. Okay. Upon me. Me personally. Okay. Okay. सवाल ये है कि पवित्र आत्मा आप में आता है तो आपको कैसा अनुभव होता है? Yeah. What do you experience? What do you feel? Right? Sometimes there's nothing. कभी कभी कुछ नहीं अनुभव होता. And I believe, all of us have the indwelling presence of the Holy Spirit. और जो हम सब में जो है पवित्र आत्मा है, right? Indwelling presence. उसका अंदरूनी तरीके से हमारे अंदर है वो. But the Bible also talks about the Holy Spirit upon us or the baptism of the Holy Spirit. लेकिन जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में जब बातचीत किया जाता है, it also talks about we are commanded to be filled with the Holy Spirit. और ये भी नहीं, ऐसे भी वचन में बोला गया है कि हम पवित्र आत्मा में भर जाएं करके बोला गया है. Right? We see that in Ephesians. एफेसियों की किताब में वो देखते हैं. So there are times when you experience the presence, the power of the Holy Spirit in a tangible way, in a very physical way. और कभी-कभी क्या है कि हम शारीरिक रीति से पवित्र आत्मा को अनुभव कर सकते हैं. Right? There are times like that. ऐसे भी समय होते हैं. But there are times when you don't feel anything. और ऐसा भी समय होता है तो कि कभी-कभी कुछ महसूस ही नहीं होता. Right. That's my experience. वो है मेरा निजी अनुभव. Okay? Okay. Okay, let's move on to talk about how the Holy Spirit is a person. आगे को हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि पवित्र आत्मा जो है एक व्यक्ति कैसे है. Because when we get an understanding of the Holy Spirit as a person, जब हम पवित्र आत्मा के बारे में एक व्यक्ति के रूप में हम समझते हैं, we begin to relate to him as a person. और तब हम एक व्यक्ति के जैसे उसके साथ एक संबंध को समझ सकते हैं. Okay, so first of all, we see that the Holy Spirit has intellect and understanding. पहला हम देखते हैं पवित्र आत्मा में एक ज्ञान है और एक इंटेलेक्ट एंड Understanding. He और has, उसको एक समझ है. right? So when we look at Acts chapter 15, जब हम प्रेरितों का काम 15 में देखते हैं, in verse 28, 28 में देखते हैं. okay, let's turn there. आइए हम उधर पढ़ेंगे. See, we are going to be looking at a lot of scripture verses. हम कई परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे. Okay, so you can just pay attention, maybe even note down the verses. और आप यहाँ पर जो दिए हुए वचन है उसको ध्यान दे दें. Okay. लिखना चाहते हैं वो भी लिख लें. Look at verse 28. 28 में देखेंगे. Okay, it says, yeah, somebody can read verse Acts chapter 15 and verse 28.
Okay. Hindi Somebody mein. in Hindi? पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले। Right. So this verse says that it seemed good to the Holy Spirit. उसमें लिखा है कि वो पवित्र आत्मा को अच्छा लगा Okay. And to us. और मुझे भी। Okay. So I judge something and I say it is good. और मैं किसी चीज को परखता हूं उसके बाद बोलता हूं ये अच्छा है। Okay. So what did you have for lunch? आप लोगों ने खाने में आज लंच में क्या खाया? दाल, चावल और सब्जी का सब्जी क्या सब्जी था? सब्जी बैंगन, बैंगन की सब्जी। Okay. Okay. So suppose you give me a plate of dal and everything and I eat it. अगर ऐसा देख लें, उदाहरण ले कि आप मुझे ये खाना मेरे को एक प्लेट में परोस कर दें तो और मैं खाऊं, And then after eating it, I judge it and I say whether it's good or bad. और उसको खाने के बाद में ही मैं कहता हूं कि ये अच्छा था कि ये खराब था। Right? Why am I able to do that? क्यों मैं ऐसा कर पाता हूं? Because I can, first of all, I can taste the food. क्योंकि पहले मैं उसको स्वाद चख सकता हूं, Right? And I have the knowledge क्योंकि to, मुझ में बुद्धि है to judge whether it's good or bad. ताकि मैं उसको समझ पाऊं ये अच्छा है कि बुरा है। And that's why I'm able to say, hey, it's nice. इसीलिए मैं कह सकता हूं कि वो अच्छा है। So we see here हम that यहाँ पर देखते हैं in this particular verse, Acts chapter 15:28, इस प्रेरितों का काम 15 का 28 में हम देखते हैं, right? It says it seemed good to the Holy Spirit, और उसमें देखते हैं कि पवित्र आत्मा को ये अच्छा लगा, which means the Holy Spirit, is able to understand and see what is good, see what is bad, and then make a decision and a choice. और पवित्र आत्मा ये ध्यान से देता है कि वो अच्छा और भला क्या है, उसके बाद वो एक निर्णय में आता है। Right? So the Holy Spirit is not something, or it's not like a inanimate, lifeless object, but he's a person who understands. और पवित्र आत्मा जो है जीवन के बिना वाला एक व्यक्तित्व नहीं है, वो एक जीवन भरा एक व्यक्ति है। Right? The Holy Spirit also teaches us. और पवित्र आत्मा क्या है? हमें शिक्षा देता है। We see that in John chapter 14. यूहन्ना 14 में हम देखते हैं। See, John chapter 14 says that the Holy Spirit teaches us. और उसमें कहा गया है कि पवित्र आत्मा जो है हमें शिक्षा देता Okay, है। what is teaching? वो क्या सिखा रहा है? So what is meant by teach someone? अच्छा, सॉरी, पढ़ाने का मतलब क्या है? Okay, someone who explains something, okay, or understand, और क्या है? नहीं, सिर्फ teaching के बारे में। टीचिंग मतलब शिक्षा मतलब क्या है? ठीक है, okay, what you know, can you जो just share? मुझे मालूम है वो और अच्छी तरीके से किसी को मैं समझा सकूं। Okay, और What is teaching? ठीक है। What else? So to teach someone is to take someone from ignorance to a place of learning. और पढ़ाने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को जो अज्ञान है उसको वहां से लेके ज्ञान की ओर लेके जाना, Right? That is teaching. वो है पढ़ाना। You make them understand. उनको समझाते हैं, You show them. हम उनको दिखाते हैं, You give them information. हम उनको अलग विषयों के बारे में सूचनाएं देते हैं। So the Holy Spirit teaches. इसी प्रकार से पवित्र आत्मा जो है सिखाता है। In John chapter 14 यूहन्ना 14 में and verse 26. और 26 में, Right? These are the words of the Lord Jesus. ये जो है यीशु मसीह के कहे हुए कथन है। Right? The Lord Jesus is teaching about the Holy Spirit. और यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के विषय में सिखा रहा है। And this is what he's saying. और ये वो उसमें कहता है, He says, the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things. और वो कहता है कि जो सहायक तुम्हारे लिए मेरा पिता भेजेगा वो सारे विषयों के बारे में तुम्हें शिक्षा देगा। Right? The Holy Spirit will teach you. और पवित्र आत्मा जो है तुम्हें सिखाएगा।
He will teach us all things. और वो सब चीजों के बारे में हमें सिखाएगा. And he says, and bring to your remembrance all things that I said to you. और वो सारे चीजें जो मैंने बोला है आप तुमसे, वो उसके बारे में तुम्हें ज्ञानवान करेगा. Remind us. Yeah. So that's the thing. He'll not only teach, वो सिर्फ तुम्हें पढ़ाएगा नहीं, but also remind you. और वो तुम्हें पढ़ाए हुए चीजों के बारे में पुनर्ज्ञानवान बनाएगा. That's the role of the Holy Spirit. वही है जो पवित्र आत्मा का एक कार्य है. You know, sometimes we wonder, how did the disciples remember all this? और कभी कभी हम सोचते हैं कि ये शिष्य लोग किस प्रकार से ये सब याद रखते हैं. You know, did they go back and write down every day? और जब वो वापस जाकर जो ये वचन को लिखते हैं, But Jesus says, the Holy Spirit will teach you and remind you of the things that I taught you. और यीशु मसीह शिष्यों से कहता है कि पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा और जो कुछ मैंने सिखाया उसके बारे में याद दिलाएगा. चलो Right? ऐसे बोल. So the Holy Spirit, yes, correct. So the Holy Spirit is the greatest teacher. और पवित्र आत्मा जो है सबसे उत्तम शिक्षक है. If we don't understand anything, कभी भी हमें कुछ चीजों के बारे में समझ ना आए, or we find some things very difficult to learn, और हम जान जाएं कि कुछ चीजों को समझना बहुत मुश्किल है, we can ask the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा से पूछ सकते हैं. And He will speak to us. और वो हमसे बातचीत करेगा. And He will teach us. और वो हमें शिक्षा देगा. Right? Because the Lord Jesus said the Holy Spirit is a teacher. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि पवित्र आत्मा जो है एक शिक्षक है. So we have an amazing person in the Holy Spirit. और हमारे पास एक बहुत ही सुंदर एक व्यक्ति है हमारे पास पवित्र आत्मा के रूप में. He will teach us. वो हमें सिखाएगा. In chapter 16, 16वें अध्याय में in verse 13, 13 में, या यूहन्ना 16 का 13, it says something else about the Holy Spirit. कुछ और विषयों में पवित्र आत्मा के बारे में बताता है. He says the Holy Spirit is the spirit of truth. और उसमें कहा गया है कि पवित्र आत्मा सच्चाई की आत्मा है. And He will guide you into all truth. और वो हमें हर एक सच्चाई की ओर मार्गदर्शन करेगा. Okay, so He will also speak to us. वो ना सिर्फ हमसे बातचीत He करेगा, will teach us. वो हमें सिखाएगा, He will remind us. वो हमें याद दिलाएगा, He will also guide us. वो हमें मार्गदर्शन करेगा. So who's a guide? और मार्गदर्शन करने वाला कौन है? Yeah, but generally, who's a guide? You know, have you been to any tourist spot? साधारण तरीके से देखा जाए तो कौन मार्गदर्शन करता है? उदाहरण से क्या आप लोग में से कोई भी एक घूमने वाले एक जगह पर स्थान में Let's गया say, है? for example, we're going to the Taj Mahal, उदाहरण से ले लें कि हम आगरा ताजमहल में जा रहे हैं. right? You will see some guide. वहां पर मार्गदर्शन करने वाला मिलेगा. So he'll come and ask, guide, you want guide? You want guide? वो लोग आके पूछेंगे आपसे, क्या आपको एक मार्गदर्शक की जरूरत है, मार्गदर्शक की जरूरत है? And then if you say yes, अगर आप हाँ बोलें, he'll say, okay, 500 rupees or whatever. और 500 रुपए या कुछ भी जो वो कहता है. And he'll take you and he'll show you all the things that are there in Taj Mahal. और वो तुम्हें एक एक जगह ताजमहल का अंदर दिखाएगा और बताएगा. Now you may not know. आपको नहीं मालूम होगा. You will just go by the signposts that are there. और वहां पर जो मार्गदर्शन के लिए बोर्ड लगे हैं उसके हिसाब से आप शायद जाएंगे. But as a guide, he will show some hidden spots which are there. और एक मार्गदर्शक के रूप में जब आप उसके साथ जाओगे, कुछ गुप्त चीजें जो साधारण लोगों को नहीं मालूम वो भी आपको बता के देगा. Right? He will tell you, when Prime Minister Indira Gandhi was there, she came here. और कभी कभी कह सकता है, ऐसा भी कह सकता है कि इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो वहां इस जगह पर वो आई थी. She had tea in this tea stall. और इस चाय के दुकान में उसने चाय पिया था. But only half the glass she drank. After that, she left. और उसने सिर्फ आधा कप पिया और उसने वहां से चली गई. All this information. और ये सब जो है जो जानकारियां, He'll be able to tell you. वो आपको बता सकता है. He'll be able to take you into the Taj Mahal and show you all the different sites and all the places. और वो आपको ताजमहल के अंदर जगहों पर लेके जा सकता है और बता सकता है कि ये चीजें हैं करके. Now you look at that verse again.
आइए हम एक और बार उस पद को देखेंगे। John chapter 16 यूहन्ना 16 and verse 13. और 13वां पद, Right? He says that it is called the Spirit of Truth. उसको उसमें कहा गया है पवित्र आत्मा जो है सच्चाई की आत्मा है। He says the Holy Spirit will guide you into all truth. और उसमें कहा गया है कि पवित्र आत्मा जो है तुम्हें सारे सच्चाई की ओर मार्गदर्शन करेगा। Now we don't know. There are some certain hidden things. हम नहीं जानते, कई गुप्त चीजें हैं। Now the Holy Spirit will guide us. उस विषयों में पवित्र आत्मा जो है मेरा मार्गदर्शन करेगा। Right? He will lead us and he will show us. और वो मुझे मार्गदर्शन कर कर मुझे वो सच्चाई दिखाएगा। Because he knows everything. क्योंकि वो सब कुछ, सब विषयों के बारे में जानकारी रखता है। Right? And the Holy Spirit also, if we want to know the will of God, he will also reveal the will of God to us. और अगर परमेश्वर का इच्छा या हित हमें जानना है तो पवित्र आत्मा उस विषय में भी हमें जानकारी देगा। Right? Look at verse 26 of John chapter 15. 15 का 26 देखें। 15 and verse 26. Sorry. John chapter 15 verse 26. Yeah, you can read that. 15 का 26 पढ़ें। यूहन्ना 15 का 26। परंतु जब वह सहायक आएगा जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। Okay. So verse 26 says, he will testify of me. और उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह बोलता है कि वो मेरे विषय में गवाही देगा तुम्हें। So what is testifying? और गवाही देने का मतलब क्या है? It means to say that something is true. उसका गवाही देने का मतलब है कि किसी विषय के बारे में और उसकी सच्चाई के बारे में बताना। Right? Something has happened. कुछ चीजें हुआ है That you're a witness to it. और मैं उस विषय में गवाह हूं। So he will testify of the truth. और उसमें वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा जो है सच्चाई के विषय में गवाही देगा। Okay. So he does this. The Holy Spirit does this. और ये पवित्र आत्मा कार्य करता, इस प्रकार से कार्य करता है। One other interesting thing that we see about the Holy Spirit. और एक और अच्छी बात जो हम पवित्र आत्मा के बारे में देखते हैं, The Holy Spirit can be grieved. He feels sad. और पवित्र आत्मा जो है दुखी हो सकता है। Okay. Let's turn to Ephesians 4 and verse 30. एफेसियों की पत्री 4 का 13 में हम देखेंगे। It says that the Holy Spirit can be grieved. It says, do not grieve the Holy Spirit. उसमें लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा को दुखी ना बनाएं। एफेसियों 4 का 13। So which means that Holy Spirit is a person. हाँ 30। 4 and verse 30. Yes. उसमें लिखा गया है कि पवित्र आत्मा जो है एक व्यक्ति है। 4 का 30। Right? So he can be grieved. What does it mean to grieve? और दुखी बनाने का मतलब क्या है? Right? It means that he is feeling sad. उसका मतलब है कि उस व्यक्ति को दुख का अनुभव हो रहा है। Right? He experiences that sadness. वो दुख को अनुभव कर रहा है। And it talks about the Holy Spirit, saying that Holy Spirit can be grieved. और वहां पर लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा जो है दुखी हो सकता है। Right? It says the commandment given there is do not grieve the Holy Spirit. उसमें एक आज्ञा दिया गया है कि कृपया करके आप लोग पवित्र आत्मा को दुखी ना बनाएं। Okay? If you look at verse 29, 29 में अगर देखेंगे, it says, let no corrupt word proceed out of your mouth. कोई भी गलत बातचीत आपके मुंह से ना निकले। Right? Chapter 4 and verse 29 says, let no corrupt word come out of your mouth. और उसमें लिखा हुआ है कि 29. पढ़े थोड़ा। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कोई गंदी बात तुम्हारी मुंह से, मतलब कोई खराब बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। Right? And verse 30 says, do not grieve the Holy Spirit. और उसके बाद 30 में लिखा हुआ है कि तुम पवित्र आत्मा को दुखी मत बनाना। Right? Which means that when I speak corrupt words, the Holy Spirit is grieved.
जब मैं कोई गलत बात बोलता हूं, कोई बाइबल के हिसाब से गंदी बात बोलता हूं, तो वो पवित्र आत्मा को दुखी बना देता है। right? But the Holy Spirit can also love or show, express love. और पवित्र आत्मा जो है प्रेम को दर्शा सकता है और वो प्रेम की भावना को दिखा सकता है। We see that in Romans chapter 5. रोमियो की पत्री रोमियो 5 में, Romans 15 and verse 30. I think. रोमियो 15 का 30। Okay, can somebody read that, please? क्या वो आप पढ़ सकते हैं? 15 का 30। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लोलीन रहो। Right. It says, through the love of the Holy Spirit, that you strive together with me in prayers to God for me. Right. और उसमें पौलुस कहता है कि प्रेम पर पवित्र आत्मा के प्रेम के अनुसार तुम मेरे साथ प्रार्थना में लीन रहो। Okay, so we see that Holy Spirit can be grieved. The Holy Spirit can also express love. हम देखते हैं इधर इस दोनों वचनों में देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है दुखी भी हो सकता है, पवित्र आत्मा के प्रेम भी दर्शा सकता है। Right. And how many of us believe that the Holy Spirit can speak? और हम में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा बातचीत कर सकता है? Right. The Holy Spirit can speak to us. पवित्र आत्मा बातचीत कर सकता है। And in fact, the week after next, thank you. The week after next, when we study, we're going to study about the gifts of the Holy Spirit. और आने वाले हफ्तों में हम लोग जो सीखेंगे पवित्र आत्मा में पाने वाली वरदानों के बारे में। Okay, so that is also going to be a very interesting 1 week. और वो आगे जाकर एक हफ्ता वो भी उसके विषय में भी हम पढ़ेंगे। But we see that the Holy Spirit communicates, he speaks to us. और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है हमसे संपर्क करता है, हमसे वार्तालाप करता है। Right, which means we need to learn to understand what he is speaking. और उसका मतलब ये है कि हमें ये समझना जरूरी है कि पवित्र आत्मा क्या बात करता है। Just listen to this. He knows all things. ध्यान दें, वो सब कुछ जानता है। He is there to teach us. He's our teacher. वो हमें सिखाने के लिए हमारा शिक्षक के रूप में है। He is there to guide us. वो हमें मार्गदर्शन करने के लिए है। Okay? And he can be grieved and he can also speak. और वो दुखी भी हो सकता है और वो बातचीत भी कर सकता है। Which means that when we relate to him, when we get to know him, we can receive guidance, we can receive his teaching because he speaks. और उसका मतलब ये है कि हम जब उसके साथ संपर्क करते हैं, उसका मार्गदर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी अगुवाई को हम प्राप्त कर सकते हैं। Right? Let's look at a few verses. और कुछ पदों को हम देखेंगे। You know, if you go to Galatians 4 and verse 6. गलातियों 4 का 6 में अगर जाएंगे। Okay? It's Galatians 4 and verse 6. गलातियों 4 का 6 कृपया पढ़ दें। Galatians 4 verse 6. Anyone? गलातियों 4 का 6। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। Right. So God has sent his spirit into our hearts, crying out, Abba, Father. पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने हमारे अंदर डाल दिया है ताकि हम उस पिता परमेश्वर को अब्बा फादर के हिसाब से बुला सके। So the Holy Spirit is speaking to us and he's speaking through us. और पवित्र आत्मा जो है हमसे बातचीत करता है और हमारे द्वारा होकर बातचीत करता है। Now, if you look at Romans chapter 8, अगर रोमियो की पत्री 8वां अध्याय में अगर हम देखेंगे, okay, there also it talks about the Holy Spirit speaking something to us. और वहां पर भी हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा कुछ विषयों में हमसे बातचीत करता है। Okay? Romans 8 and verse 16 रोमियो की पत्री 8 का 16 says, the Holy Spirit bears witness with our spirit. और वहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा जो है हमारे से एक गवाही को करता है। Right? He bears witness. He witnesses to our spirit. और वो हमारी आत्मा के साथ गवाही करता है। What does he witness? The witness he gives us is that we are children of God. और क्या गवाही देता है कि हम उसके पुत्र हैं, Right? परमेश्वर के। So he speaks to us in our spirit.
वो जो है हमारी आत्मा से बातचीत करता है, and he's actually witnessing, giving us proof that we are children of God. और ये एक प्रूफ देता है कि वो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। Okay. Well, when we look at scripture, we see that the Holy Spirit can be insulted. He gets insulted. वो जो है निंदित हो जाता है पवित्र आत्मा। Hebrews 10:29 talks about that. इब्रानियों 10:29 में कहा गया है वो। And let's go to Acts chapter 5. प्रेरितों का काम 5, And Acts chapter 5 talks about the fact that two people lied to the Holy Spirit. और वहां पर देखा जा सकता है कि दो लोगों ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। Right? It talks about Ananias and Sapphira. वहां पे सफीरा और अननीस के बारे में लिखा हुआ है That they lied to the Holy Spirit. उन लोगों ने जो है पवित्र आत्मा से झूठ बोला। Okay, and this is what Peter says. इस प्रकार से पतरस कहता है। Okay, Peter says in Acts chapter 5 and verse 4, he's talking to Ananias. वो अननियास से ऐसे बात करता है 5:4 में पतरस बोलता है। Okay, can somebody read it please? Acts chapter 5 and verse 4. जब वह तेरे पास रहे क्यों तेरी ना थी, और जब डिग गए तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। Yeah. So it says here, you have not lied to men, but you have lied to God. उसमें कहा गया है कि पतरस बोलता है कि तूने जो है झूठ मनुष्यों से नहीं बोला परंतु परमेश्वर से बोला है। Right. So he's saying you have lied to God. वो पतरस कहता है कि तूने जो झूठ बोला है वो परमेश्वर से झूठ बोला है। Okay. Look at verse 3. तीसरा पद देखें। He says, why did Satan fill your heart to lie to the Holy Spirit? उसमें वो पतरस पूछता है कि क्यों शैतान ने तेरे हृदय को भर दिया ताकि तू झूठ बोले। Okay. So when they were telling a lie, they were lying to the Holy Spirit. और जो वो लोग जब झूठ बोल रहे थे तो झूठ किससे बोल रहे थे? पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे थे। And he refers to the Holy Spirit as God. और वहां पर पतरस जो है पवित्र आत्मा को परमेश्वर के रूप में बोलता है। Okay, so we see all these verses and we see that the Holy Spirit is a person. और ये सब पदों में से हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में से देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है एक व्यक्ति है। Right? So as a person, you can either engage with the person, communicate and talk to the person. और एक व्यक्ति के रूप में हम उसके साथ वार्तालाप कर सकते हैं, Or you can ignore the person. और हम उसको तिरस्कार कर सकते हैं। Right? I don't know if you've been to any wedding or some gathering. मैं ये जानता नहीं हूं कि आप कोई शादी के माहौल में कभी गए हैं। Okay? Sometimes when you go, everybody is there, they're welcoming you. Come, come, come. Thank you for coming. और कभी जब हम जाते हैं सब लोग हमारा स्वागत करते हैं, आइए आइए करके। And sometimes maybe they've ignored you. और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो है तिरस्कार हो जाता है। Okay, nobody welcomed you. किसी ने हमारा स्वागत नहीं किया, Nobody spoke to you. किसी ने हमसे बातचीत नहीं किया, Right? Nobody told you, okay, please come eat. Nobody told you that. किसी ने नहीं बोला आइए कृपया करके खाना खाइए। They completely ignored you. तो पूरी रीति से आपका तिरस्कार कर दिया। It can happen. ये ऐसा भी हो सकता है। So the same thing can happen with the Holy Spirit. यही बात जो है पवित्र आत्मा के साथ भी हो सकता है। We may not talk to the Holy Spirit. हम लोग जो है पवित्र आत्मा के साथ बातचीत ना करें, Right? We may not share our heart with the Holy Spirit. हम हमारे हृदय के विषयों को उसके साथ ना बांटें, We may not listen to the Holy Spirit. और हम उसकी बातों को नहीं सुनेंगे। The Holy Spirit wants to teach us, पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहता है, but we are not interested. लेकिन हम उसमें रुचि नहीं रखते हैं। Right? It could happen. ऐसा हो सकता है। Right? If it can happen as a simple wedding, it can happen in our relationship with the Holy Spirit. और अगर एक शादी के माहौल में अगर ऐसा हो सकता है तो पवित्र आत्मा के विषय में भी ऐसा हो सकता है। And when such things happen, the Holy Spirit is grieved. और इस प्रकार का जब विषय होता है पवित्र आत्मा जो है दुखी हो जाता है। Right? And the Bible also says that you can resist the Holy Spirit. और परमेश्वर का वचन ऐसा भी कहता है कि आप जो है पवित्र आत्मा को रोक सकते हो। Okay. What does it mean to resist? रोकने का मतलब क्या है? Anyone?
क्या कोई कह सकता है रोकने का मतलब क्या है? ना रोकना, जस्ट वो जो वो वर्ड का मीनिंग बोलिए, रोकने का मतलब क्या है? किसी को रोकना। No, no, no. ना ना ना, वो नहीं पूछा, सिर्फ सिर्फ वो वो वर्ड शब्द। रोकने। आपसे अगर कोई रोकना वो वर्ड बोले तो उसका मतलब क्या है? नहीं अलाउ करना, नॉट टू अलाउ, No entry. नो एंट्री मीन्स रिजेक्ट, Reject. What does sister say? टालना मीन्स Okay, reject. जस्ट Okay, से दैट नो। okay. Yeah. प्रोटेक्शन, Protection. Protection नहीं है. प्रोटेक्शन नहीं हो सकता। हाँ. No, resist मतलब you're pushing. He's Rest. trying to come. I'm trying to, keep him at arm's distance. उसका वही. मतलब ये है कि वो मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं उसको धक्का देके हटा रहा हूं। इंसल्ट हिम। Insult. Right. Look at this verse, Acts chapter 7. Sorry. रेज देयर हैंड। Yes, sister. ट्राई नॉट टू लिसन, हाँ. उसकी ना सुनना। Try not to listen, but try not to obey. Right? Suppose सही मायने से उसकी बात को नहीं मानना। suppose I tell you, please sit down, and you're saying, no, I will stand only. That is resisting. कभी Right? मैं कहूं कि आपसे बैठ जाइए कृपया, लेकिन आप तो बोल रहे हैं नहीं मैं खड़े ही रहूंगा या रहूंगी, उसको कहते हैं उसको रोकना। Right? You're resisting. Look at Acts chapter 7 and verse 51. प्रेरितों का काम 7 का 51 देखेंगे। Okay, can somebody read? आप पढ़ें प्रेरितों का काम 7 का 51। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। Okay. So who speaks these words? Who's saying these words? ये वचन कौन बोल रहा है? आप बताएं कौन बोल रहा है ये वचन? Who's speaking these words? पॉल? No. नो। नहीं, आप you read it once and you tell me who is speaking एक और these बार words. पढ़ के देखें और उसके बाद बताएं कौन इसमें बात कर रहा है। नहीं. Who is speaking these words? Just look, read the verses before, read the verses after. एक पद उसके ऊपर पढ़ लें, एक पद उसके नीचे पढ़ लें और फिर बताएं कौन इस इधर पे बातचीत कर रहा है। यीशु मसीह ना। एक पद आगे पढ़े। Okay, this is Acts chapter 7, right? प्रेरितों का काम 7 उसका 51 हम पढ़ रहे हैं, उसका एक पद ऊपर पढ़ लें, एक पद नीचे पढ़ लें और Huh? 7:51 Acts chapter 7 verse 51. 7 verse 51 who is speaking? कौन बातचीत कर रहा है? स्टीफन। Exactly. It is Stephen, वहां पर स्टेफन बात कर रहा है। right? So Stephen, see from Acts chapter 7 and it is from verse 2 onwards. दूसरे पद से 7 का दूसरे से From verse 2 onwards, it is Stephen who is speaking. वहां पर जो है स्टेफानुस है जो बातचीत कर रहा है। Right? He is speaking to the high priest. He is speaking to everyone who is gathered there. वहां के महापुरोहित जो संग हुए थे, लोग जो यहूदी लोग उसको मारने के लिए आए थे, उन सबके साथ ये बातचीत कर रहा है। So in verse 51 we see that he's saying you resist the Holy Spirit. और वहां पर पद में देखते हैं कि स्टेफानस बोलता है कि तुम जो है पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हो। Right? The Holy Spirit is trying to lead you to do something, but you are resisting. लेकिन वहां बोलता है कि तुम्हारे को पवित्र आत्मा जो है अगुवाई करने की कोशिश करता है, लेकिन तुम उसको रोक रहे हो। Right? So as believers, we can resist the Holy Spirit. और एक विश्वासी के चलते हम पवित्र आत्मा को रोक सकते हैं। Now some of us say, no, what God wants, God will do. कभी कभी यहाँ कुछ लोग बोलते हुए सुना होगा कि जो प्रभु चाहता है करने के लिए वो तो जरूर कर लेगा। In my life, whatever God wants will happen. और मेरे जीवन में जो कुछ प्रभु कार्य करने को चाहता है होना है वो तो हो जाएगा।
right? God's will always happen in my life. और परमेश्वर का हित ही मेरे जीवन में हमेशा होगा। Is it correct or wrong? वो सही है या गलत है? Okay, if it's right, why is it right? अगर सही है क्यों सही है? If it is wrong, why is it wrong? अगर गलत है तो क्यों गलत है? Okay, you understand the question, आपने सवाल को समझा? right? To say God's will in my life will always happen automatically. और मेरे जीवन में जो परमेश्वर का हित है वो तो अपने आप हो जाएगा। ये सही है या गलत है? गलत है तो क्यों है? Okay, how many of you are saying it's right? First of all, आप में से कितने बोलते हैं कि ये सही है? okay, some of us are undecided. कुछ लोग जो हैं समझ नहीं पाए, निर्णय नहीं ले पा रहे, बोले तो क्या बोले? Okay, how many of you are saying it is correct? God's will always happen in my life. और कितने लोग आप में से बोलते हैं कि सच में परमेश्वर का हित मेरे जीवन में होता रहेगा, अपने आप हो जाएगा? कोई नहीं है, Nobody? Sister? ऑटोमेटिकली, What are you saying? Yeah. प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा. Okay. She says yes. She says yes, it will always happen, but एक ही because है of जो prayer. एक ही व्यक्ति ने बोला Okay. हाँ। So the बाकी सब rest ना। of us are saying God's will can happen, but God's will sometimes cannot happen in my life. उसका मतलब ये है कि आप लोग ना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का हित कभी हमारे जीवन में हो सकता है, कभी कभी वो नहीं भी हो सकता। Right? Why is it? That is the correct answer. She is saying no. She's saying, yeah, but I'll explain that. वो मैं बताऊंगा आपको, Yeah? बताऊंगा। Yes. Yeah. So what God wants for our life is the best. That is clear. जो प्रभु मेरे जीवन में चाहता है वो सबसे उत्तम होता है। His will is good. उसका हित सही है। But like this sister said, I have free will. I can choose. लेकिन जिस प्रकार से इस बहन ने बोला कि मेरे को चुनाव करने का अनुमति प्रभु ने दिया है। I can choose to obey him. मैं उसकी आज्ञा मानने के लिए मेरे पास चुनाव करने का I can choose to disobey him. और मैं उसको ना मानने के लिए भी चुन सकता हूँ। Right? And that is why Stephen is telling these people, इसीलिए स्तेफानोस उन लोगों से बोलता है you always resist the Holy Spirit. कि तुम हमेशा जो है पवित्र आत्मा को रोकते हो। Right? He's talking to the Jews. वो यहूदियों से बातचीत करता He's है। saying you resist the Holy Spirit. तुम लोग जो है पवित्र आत्मा को हमेशा रोकते हो। And like you said, sister, yes, when we pray, when we yield ourselves, God's will happen in our lives. वो सही है बहन जो आपने बोला कि जब हम प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा के परमेश्वर के हित की ओर हम अपने आप को देंगे तो परमेश्वर का हित हमारे जीवन में हो जाएगा। But if we harden our hearts, लेकिन अगर हमारे हृदय को हम कठोर कर दें, and if we say no to the Holy Spirit, और हम पवित्र आत्मा को ना कह दें, well, we will go our own way. और हम अपने रास्ते चले जाएंगे। Right? Yes, you wanted to say something. Exactly. That's और what she also said. Yeah. जब हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने को चांस देते हैं तभी वो हमारे जीवन में कार्य करेगा। Right? So काम करेगा। God's will in our lives is not automatic. परमेश्वर का हित जो हमारे जीवन में है वो अपने आप से होने वाला नहीं है, Right? ऑटोमेटिकली। We need to cooperate with him. हमें क्या है उसके साथ सहयोग करने की जरूरत है। We need to walk with him. हमें जो है उसके साथ चलने की जरूरत है। Right? In Amos chapter 3 and verse 3, आमोस का पुस्तक में chapter 3 verse 3, 3 में ऐसा लिखा गया है। it says, can two walk together unless they are in agreement? और उसमें लिखा है कि क्या दो व्यक्ति एक साथ चल सकते हैं जब तक वो एक सोच विचार में नहीं है। Right? So if brother is saying, come, let's go that side, और अगर भाई बोलता है कि चलो उस साइड चलेंगे, and I say, okay, मैं बोलता हूँ ठीक है, but I'm walking in this direction, लेकिन मैं उसके विपरीत रास्ते में चल रहा हूँ, right?
I've told him, yes, let's go there. और लेकिन मैंने तो कहा है कि चलो जाएंगे वहां पर, But then in my action, I'm going in the opposite लेकिन direction. मेरे कार्य में, क्रिया में जो है मैं विपरीत में जा रहा हूँ। Right? Then we won't reach the same place. तब क्या होगा कि हम एक लक्ष्य स्थान में नहीं पहुंच पाएंगे। We are not walking together. हम लोग जो है एक मन होकर नहीं चल रहे हैं। And we can do the same thing with the Holy Spirit. हम यही कार्य जो है पवित्र आत्मा के साथ कर सकते हैं। Okay? So he wants to lead us, he wants to teach us. वो हमें सिखाना चाहता है, वो हमारा मार्गदर्शन करना चाहता है। But we can grieve him and we can resist him. और हम उसको दुखी बना सकते हैं और उसका तिरस्कार या उसको रोक सकते हैं। The Bible talks about, in English, there is one word, it says, we don't quench the Holy Spirit. और अंग्रेजी में दिया हुआ ऐसा एक वचन है कि उसको It's Quench. like 1 Thessalonians 5:19. पहला तस्सलोनियों Chapter 5 and verse 19. 5:19, पहला तस्सलोनियों 5:19। Okay? It says, do not quench the Spirit. बुझाओ So, उसकी आग को ना बुझाओ। right. मीन्स किस प्रकार से, इस प्रकार से हिंदी में कह सकते हैं हम लोग कि पवित्र आत्मा की जो इच्छाएं हैं, अच्छाइयां हैं, उसको हम कभी भी बुझा नहीं देना चाहिए हमारे जीवन में से। Right? So, what is the instruction? Don't quench the Holy Spirit. और यहाँ पे क्या आज्ञा दिया गया है कि पवित्र आत्मा के अच्छाई को, इच्छाओं को आप अपने जीवन से बुझाना नहीं है। Now, why is that instruction given? क्यों वो आज्ञा दिया गया है? Because it is possible to quench the Holy Spirit. क्योंकि वहां पर एक चांस है, वहां पर एक मौका है कि उसकी अच्छाइयों को हम बुझा दें। And that is why Paul writes and he says, do not quench the Holy Spirit. इसीलिए पौलुस यहाँ पर लिखकर बता रहा है कि पवित्र आत्मा की इच्छाओं को, अच्छाइयों को आपके जीवन में से बुझा मत देना। Okay? So we can resist the Holy Spirit, we can quench the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा को रोक सकते हैं और उसकी अच्छाइयों को और भलाइयों को, इच्छाओं को बुझा भी सकते हैं। Okay, so all these things the Bible says don't do to the Holy Spirit. और ये सारे पद जो है परमेश्वर के वचन में से, ये हमें दिखाता है कि हमें ऐसे ऐसे कार्यों को पवित्र आत्मा के प्रति नहीं करना है। Right? So when we study all this, when we learn all this, हम जब ये सारे विषयों में पढ़ते हैं, we understand that the Holy Spirit is a person. और हम समझ पाते हैं कि पवित्र आत्मा जो है एक व्यक्ति है। And it is our privilege to talk to him. और हमारा एक सौभाग्य है कि हम उससे बातचीत कर सकते And हैं। it is easy to talk to the Holy और Spirit. ये बहुत ही आसान है कि हम उससे बातचीत कर लें। It is easy to be led by the Holy Spirit. और बहुत आसान है कि उसके द्वारा हम मार्गदर्शन किए जाएं, Right? To be taught by him, ताकि हमें उसके द्वारा पढ़ाया जाए, to be guided by him, उसके द्वारा मार्गदर्शन किया जाए। because he has our best in his mind. और क्योंकि उसके मन में हमारे विषय में सबसे उत्तम बातें हैं। Okay? Right. So we'll stop here. और हम यहाँ पर रोकेंगे अगले 10 minutes 4:10, no? 4 Okay, we'll come back 10, in 4, 4:5. 4:5. Okay. उसके हिसाब से 4-5 को आ जाएंगे। Okay. Okay. Let's take a quick break. Thanks. 4-5 को हम लोग वापस आ जाएंगे और एक ब्रेक अभी आप ले सकते हैं।